Please introduce yourself. My name is Mortaza. I'm from Afghanistan. Right now, I'm PhD scholar in economics department. So, what is your thinking about the Indian people? Because you are came from Afghanistan. Actually, since 2019, I'm living in India. I'm so happy. I have lots of friends in India. Actually, also I completed my master degree in MD Eurotech, and right now it's my pleasure to stand in front of you. And I'm so happy. All Indian like famous as a hospitality. They are so kind, and So, how do you know about CUH? Because there's a lot of universities. So, why you take admission here rather than other university? Okay, actually, to be honest with you, I had one friend by the name of Akhilesh Meena. Yeah. I was contact with him. He also told me you can take admission here, and after that, after it's like 1.5 year I'm here, and I'm pursuing PhD here. So, do you girlfriend here? No, I'm single. Okay. What is your experience in CUH? Actually, right now I found lots of friends already. Because I live in India, it's like 4 years as a explore the area, see the people this agriculture and all this like in Haryana. Actually, I also like this song and this Haryana culture because they all love singing, dancing. All this is like famous in the world. So, what you have learned till now about the Haryanis and the other states? Actually, just as a language, I learned some few words in Haryanavi because Haryanavi language is a little bit tough and difficult for me because I'm talking Farsi, and like in Haryanavi, it's just I know a few words. It's like All Hindi say like how are you, kaise ho? Some people say methiko or I'm fine, and like where are you going? Haryanavi say kis ja rahe ho, like kaha ja rahe ho. This word like a little bit tough and difficult for me to. Yeah, I think your Hindi is also good. If you say any other word in Hindi. Okay, yeah, I know as just a little bit Hindi as a word. What should I say? Just आपसे मिलकर खुशी हो, bro. I'm so happy to have Wow, me that's a here. good Hindi. And what is your experience in hostel? Because the hostel is a good life, no? Yes, actually, it's like two years I'm living in hostel here, and hostel life and hostel student, all friends they are living together. At night we are walking together, stay together. Like in hostel also, like it's near to department as well. Like in department, library, anything is facilities near to hostel. As I studying also is so good because in campus, if I living outside, is like traveling is little bit difficult here, and in hostel is better honestly. If I'm living here, I can catch this opportunity as well. या ओके थैंक यू अभी जैसे कि ने बताया है कि ये अफगानिस्तान से यहाँ पे आकर के पीएचडी स्कॉलर हैं और यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और आपने ये देखा है कि जो कल्चरल होता है ना सबसे एक बड़ा एस्पेक्ट होता है हर एक जगह अगर आप जाते हो ना तो वहाँ पे कल्चर जो होता है एक मेन रोल प्ले करता है और जैसे भैया भी ने बताया है कि जो इंडियन लोग होते हैं बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं चलिए फिर ऐसे ही और लोगों से बात करते हैं My name is Meenu and I'm from Rohtak, Haryana. और यहाँ पे आपका कौन सा कोर्स है I'm pursuing PhD. और कितने ईयर्स हो चुके अभी तक अभी 6 months ही हुए हैं. I just got admission. व्हाट इज योर टॉपिक Till now I'm working on it. Okay. Hopefully I will. और आपका मास्टर्स कहाँ से हुआ है I did my master from Rohtak, MDU Rohtak. ओके सेम जैसे अभी आपने पिछले हाँ. वाला सुना है वहाँ से भी एमडीओ से किया है हाँ. तो Nearby क्या आप Delhi. रोहतक से आप डेली आना जाना होता है या फिर आप हॉस्टल में रहते कभी हैं कभी कभी अप डाउन कर लेती हूँ और कभी कभी मैं हॉस्टल में ही स्टे करती हूँ. रोहतक एक्चुअली यहाँ से आई थिंक 80 किलोमीटर हाँ, के आसपास हाँ, है तो 92, क्या हाँ 92. 80-90 है तो क्या आप सिर्फ सीवेज को ही क्यों प्रेफर करें हो सकता है डीयू वगैरह भी आप प्रेफर कर सकते थे मतलब जहाँ पे एडमिशन मिल गया, जहाँ वैकेंसी, एक्चुअली पीएचडी की वैकेंसी उतनी होती नहीं है, तो बाय दैट टाइम मुझे जहाँ पे एडमिशन मिला, वैकेंसी जहाँ खाली थी वहीं मैंने एडमिशन ले लिया. आपका भी 6 मंथ्स हो रहा है तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा अच्छा एक्सपीरियंस है. यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है. मतलब मैंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में एज़ कम्पेयर टू एमडीयू देखूँ तो एमडीयू बहुत ज़्यादा साल पुराना है, मतलब वो वेल स्टैब्लिश है. बट ये यूनिवर्सिटी रिसेंटली स्टैब्लिश हुई है, बट स्टिल बहुत अच्छा वर्क कर रही है, अच्छा कम्पीट कर रही है अदर यूनिवर्सिटीज़ को जो स्टेट लेवल के ऊपर है. रिसर्च वर्क बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे. रिसर्च वर्क, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, गाइड बहुत अच्छे हैं. तो ये इस चीज़ों में मैंने देखा है यहाँ का
काफ़ी अच्छी मतलब एजुकेशन वाइज ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी प्रोग्रेस जैसे आपने बताया कि आपका यहाँ आने का सिर्फ 6 मंथ्स हुआ है, तो हाँ। आपने जरूर सीनियर से कांटेक्ट किया कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है कैसा, और आप सीनियर्स कितने आपको हेल्पफुल लग रहे हैं? सीनियर्स बहुत हेल्पफुल थे, डे वन से ही बहुत हेल्पफुल थे। उन्होंने मतलब फॉर्म फिल करने से लेके हॉस्टल में सेटल डाउन करने से लेके हर चीज़ में हमारी मदद करी है। एवरी सिंगल थिंग, मतलब स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर कोई इशू हो तो हम अपने सीनियर्स के पास ही जाते हैं कि भैया ये बता दो। और हमें जूनियर्स इसकी आपका कैसे है knowledge- जो मास्टर्स वाले हैं? जूनियर्स, हाँ जूनियर्स को तो मैं पढ़ाती हूँ, उनकी क्लासेस लेती हूँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं, क्वेश्चनिंग करते रहते हैं। एक अब- यहाँ पे बैठी भी हुई है अच्छा, student। आपने जैसे बताया हॉस्टल के बारे में, तो हॉस्टल हाँ। का फैसिलिटी क्या क्या, एक रूम में कितने लोग रहते हैं? आप गर्ल्स बात करो तो। हॉस्टल में एक रूम में 3 लड़कियां हैं, 3 सिटिंग में हैं, 3 लड़कियां रहती हैं एक रूम के अंदर। पीएचडी वालों को भी सेम ही है। तो वहाँ पे कोई मतलब दिक्कत वैसा होता है क्या? हॉस्टल का खाने का दिक्कत क्या तो है? खाना ठीक ही है, हम्म, मतलब ओके है मतलब खाना। इसमें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब एक से दूसरा हॉस्टल में भी आप जाके खाना खा सकते हैं, हाँ राइट? हाँ हाँ, आप हाँ अगर आप दूसरे हॉस्टल, एक हॉस्टल में रहते हो तो आप अपने आसपास में जो भी हॉस्टल नियर बाय में, एपीजे में, मेरे साइड में एपीजे पड़ता है तो मैं वहाँ प्रेफर करती हूँ। खाना खाना अच्छा है, मतलब ओके है और खाना। हॉस्टल फी क्या है आप लोग, क्योंकि पीएचडी स्कॉलर का आई थिंक थोड़ा अलग है, फिर उसका स्कॉलरशिप भी आ जाता है। हाँ 10,000 है, बट वो स्कॉलरशिप के अंदर हमें रिटर्न मिल जाती है। जैसे जो जीआरएफ, जो कैंडिडेट जीआरएफ होते हैं उनको तो स्कॉलरशिप मिलती है और हॉस्टल की फीस वापस आ जाती है, हमारी एचआरए में आ जाती है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं, आपका पीएचडी कितने वर्षों में हो सकता है? होपफुली इन 3 years, बट इट टोटली डिपेंड अपॉन मी एंड माई पोटेंशियल टू डू इट। ओके, थैंक यू। जैसे अभी जैसे इसने बताई कि ये रोहतक से आती है। एक्चुअली लास्ट और क्वेश्चन है, क्योंकि आप हरियाणा से आते हो, तो क्या बाहर के लोग यहाँ पे भी हैं? क्योंकि वो तो अदर स्टेट्स से, आप हाँ। कल्चर क्या सीख रहे हो? कल्चर में डिफरेंस है एक्चुअली, रोहतक का कल्चर थोड़ा यहाँ से डिफरेंस है बहुत सारी चीज़ों में। इफ़ आई टॉक अबाउट लैंग्वेज स्पेशली यहाँ की लैंग्वेज में थोड़ा राजस्थानी टच है, बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ राजस्थान से नियर बाय बॉर्डर पड़ता है तो बहुत ज़्यादा राजस्थानी टच है। और जो हमारे यहाँ की लैंग्वेज है रोहतक की स्पेशली, वो बहुत खड़ी हरियाणवी लठमार बोली बोलते हैं हमारे, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी वॉइस होती है और बहुत डिफरेंट होती है यहाँ से। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ की वॉइस में थोड़ा राजस्थानी टच है। और कल्चर की बात करें तो कल्चर ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, वही दूध दही का खाना। और अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट या साउथ से, अगर कोई आपके दोस्त बने हुए हैं, तो इनसे आप क्या सीख रहे हैं? हाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट से है, साउथ से भी है, इवन साउथ से भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं तो उनका वही मतलब ईटिंग का थोड़ा डिफरेंट होता है, उनका खाने का हमारे कल्चर और उनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट होता है इन टर्म्स ऑफ फूड, स्पेशली फूड्स के और कुछ लैंग्वेज भी बैरियर्स आते हैं जो बाहर से आते क्या हैं आपने यहाँ डांस पे। वगैरह देखा था नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ वगैरह हाँ का? नॉर्थ ईस्ट का, हाँ मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टूडेंट्स का डांस देखा मैंने, बहुत अच्छा। वो जो बिहू बिहू डांस होता है, क्या आपको समझ में आया था वो क्या है, हाँ, सॉन्ग का बहुत मतलब? बहुत अच्छा था। हाँ सॉन्ग का मतलब तो नहीं सॉन्ग का मतलब तो बट नहीं सॉन्ग समझ में अच्छे आया। थे और हाँ सॉन्ग डांस अच्छे थे, डांस स्टेप्स बहुत अच्छे थे, स्टूडेंट्स ने करे थे। तो अभी सारा बताएं कि जो कल्चरल होता है एक मेन एस्पेक्ट भी होता है, इसके अलावा जो पीएचडी में क्या है यहाँ पे अलॉटमेंट सीट और एक रूम में कितने रहते हैं, चाहे वह गर्ल्स हो चाहे बॉयज, ये सभी एस्पेक्ट के बारे में बताइए। चलते हैं दूसरे के पास। आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अखिलेश है, अखिलेश मीना, और मैं राजस्थान से हूँ। और मैं अभी करंटली बचपन से ही दिल्ली में ही रह रहा हूँ और अभी भी दिल्ली में ही हूँ। और अभी आपके यहाँ पे कोर्स कौन सा चल रहा है? मैं अभी करंटली पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ और मास्टर्स भी मैंने यहीं से कर रखी है। अभी सेकेंड ईयर है मेरा पीएचडी का। रिसर्च टॉपिक क्या आपका फाइनलाइज हो चुका है अभी तक? हाँ, आई एम वर्किंग ऑन इट, बट रिसर्च टॉपिक अभी जो फाइनलाइज हो रहा है मेरा रिसर्च टॉपिक है कि एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स इन राजस्थान विद स्पेशल रेफरेंस टू सीकर डिस्ट्रिक्ट एंड प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। व्हाट इज एक्सपीरियंस इन सीयूएच? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। किस चीज़ में? क्योंकि आपने बताया कि लगभग 5 साल का, चाहे वह एकेडमिक का बात करें चाहे वह हॉस्टल्स के बारे में बात करें, कितना एक्सपीरियंस, और क्योंकि लोग अलग अलग आप मिले हैं लगभग लास्ट 5 इयर्स में, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे। अब जैसे मास्टर्स की मैं बात करूँ तो मास्टर्स का 1 साल मेरा कोरोना में घर पे गया, तो उसमें भी ऑनलाइन एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था कि जैसे टीचर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे, चाहे वो आपकी किसी भी तरीके की हेल्प हो, चाहे फाइनेंशियली हो या आपकी एकेडमिकली हो, हर तरीके से उन्होंने हेल्प करी। फिर यहाँ ऑफलाइन जब आए तो वो एक्सपीरियंस अलग ही होता है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम हॉस्टल आया था, घर से पहली बार बाहर निकला था। ये हाँ, लाइन शुरुआत- मिस करती। हाँ, तो हॉस्टल में थोड़ा दिक्कत हुआ 4-5 दिन। फिर उसके बाद जैसे दोस्त भी फिर बनते गए, रूममेट्स मेरे अच्छे दोस्त बने, फिर रूममेट्स के साथ अदर रूम्स के अच्छे दोस्त बने, अदर डिपार्टमेंट्स के, अदर स्टेट्स के, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हॉस्टल में। और रिसर्च अगर हम बात करें यहाँ पे जो स्कोप है वह कैसा है? क्या यहाँ पे वैसा रिसर्च स्कोप देखने को मिलता है जो अदर यूनिवर्सिटी को देखने को मिलता है? रिसर्च स्कोप अच्छा है। यहाँ के जो हमारे गाइड है, सुपरवाइजर्स हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंस है
हमारे जो डीन सर हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है उनकी इकोनोमेट्रिक्स के अंदर, और तो यहाँ सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है, अच्छा स्कोप है। और डिफिकल्टीज क्या होते हैं रिसर्च करने में? क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ मेनली आपको, वैसे तो डिफ़िकल्टीज़ कोई आती नहीं, जो डिफ़िकल्टीज़ आएगी आपकी, जैसे आपके जो डेटा बेसिस है यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ से आप डेटा कलेक्ट करते हो और जहाँ से आपको डेटा मिलता है ऑनलाइन, वो यहाँ पे बहुत लिमिटेड है। तो अभी रिसेंटली इन्होंने इंडिया स्टैट वेबसाइट है जहाँ से आप डेटा ले सकते हो किसी भी तरीके का, वो उसका एक्सेस हमें कल से मिला है 1 अप्रैल से। तो अभी धीरे धीरे मिल रहा है, तो आगे जैसे जैसे बढ़ेगी, अभी यूनिवर्सिटी नहीं है तो इतना एक्सेस है नहीं, तो अभी धीरे धीरे सारे डेटा बेसिस आने लगेंगे तो और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा रिसर्च का। हॉस्टल की बात करें तो जो रेसिडेंशियल पीरियड होता है वो कितने साल के होते हैं? आपका ये पीएचडी में रेजिडेंशियल पीरियड होता है 2 साल का। मतलब पहले तो ये होता था कि आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से, कि आपका जब टॉपिक फाइनलाइज होता है उससे 2 साल गिने जाते थे। फिर अभी यूजीसी के नए गाइडलाइंस के अनुसार आप जो आपका डेट ऑफ एडमिशन है उससे आप 2 साल का आपका रेजिडेंशियल पीरियड होता है, फिर आप 2 साल बाद कहीं पे भी रह के पीएचडी कर सकते हो, बट वी विल नॉट गेट योर फेलोशिप। ओके, डू यू हैव गर्लफ्रेंड? बहुत तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ने लगभग अभी तक कितने कॉन्फ्रेंसेस हो चुके लास्ट 5 ईयर्स में? कि आपने यहाँ पे रहे हो, आप लास्ट 5 ईयर आप यहाँ रहे हो, तो लगभग कितने कॉन्फ्रेंसेस हो चुके हैं अभी तक? कॉन्फ्रेंसेस अराउंड 6-7 कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं, सेमिनार, वर्कशॉप्स। मास्टर्स के टाइम पे 7 डेज की इकोनोमेट्रिक्स की वर्कशॉप हुई थी एफ्री नाम से। फिर उसके बाद जैसे हम पीएचडी में आए तो पीएचडी में रेगुलर बेसिस पे होती रहती है। बात करें कल्चरल डिफरेंस जो होते हैं, बहुत सारे लोग आपके दोस्त भी बने हो, तो उनसे आप क्या क्या सीखने को मिला आपको? देखो, मेरा गांव यहाँ से 75 किलोमीटर दूर है, तो कल्चरल डिफरेंस तो मुझे कुछ लगा नहीं, क्योंकि जैसे मेरे गांव में बोली है वैसे यहाँ पे भी बोली है, राजस्थान पूरा टच है। और फिर उसके बाद बाकी जैसे स्टेट्स हैं, जैसे मेरे हॉस्टल्स जो बैचमेट थे, हॉस्टल्स के रूममेट थे मेरे मास्टर्स में, वो दोनों हरियाणा से थे, तो उनसे भी मेरा कल्चर मिलता जुलता था, तो हमने काफ़ी मजे किए, सीखा तो है ही। और उसके बाद बाकी अभी जैसे रिसेंटली अफगानिस्तान से फ्रेंड है मुर्तज़ा, और बाकी नॉर्थ ईस्ट के भी फ्रेंड है, बिहार के भी फ्रेंड है, आप ही हो। और फिर उसके बाद बाकी और है मध्य प्रदेश से, बिहार से, झारखंड, तो काफ़ी कुछ है। जैसे कि अभी भैया ने बहुत चीज़ों के ऊपर में बताया कि कल्चरल डिफरेंस हो, चाहे वह यहाँ का हॉस्टल के बारे में और एक्सपीरियंस बताया, क्योंकि भैया यहाँ से मास्टर्स भी और पीएचडी भी यहीं से कर रहे हैं, तो एक सबसे बड़ा जो एक्सपीरियंस होता है बताने का, तो इनके अलावा और नहीं बता सकते। चलते हैं इसके साथ में कहीं और दूसरे से बात करते हैं। आपका इंट्रोडक्शन? मेरा नाम संदीप है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जाटपारी महेंद्रगढ़ का शोधार्थी हूँ, पीएचडी स्कॉलर हूँ, और मैं मूलतः बिहार से हूँ। बिहार से हूँ। और यहाँ पे रिसर्च में कितना टाइम हो चुका है, तो कितना ईयर्स हो चुका है? अभी ऑलमोस्ट 1.5 ईयर कंप्लीट कर रखा है। 1.5। टॉपिक आपका फाइनलाइज तो हो चुका है? हाँ, टॉपिक मेरा फाइनल हो चुका है। और आपका मैंने देखा कि बहुत सारे आपने कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड किया है, जैसे कि दिल्ली में भी हुआ था, कौन सा हुआ था वो? एक कॉन्फ्रेंस था कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया का, तो उसमें एक सेमिनार था बेसिकली। तो ओवरऑल मतलब ऑल ओवर इंडिया 6 पेपर सेलेक्ट हुए थे, तो उसमें एक मेरा भी पेपर था। कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए हम लोग परिवार की तरफ से। आपका सीएच में क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? मैं बेसिकली मास्टर्स भी मतलब मेरा यहीं से है, 2017-19 के बैच का मैं मास्टर्स स्टूडेंट, यहाँ से पास आउट स्टूडेंट हूँ। तो एक मुझे एक अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ मिला है, लोग अच्छे हैं, स्टूडेंट अच्छे हैं, टीचर्स फैकल्टी अच्छे हैं, और डिपार्टमेंट का भी इन्वायरमेंट अच्छा है। फैकल्टीज कितने मतलब सपोर्टिव होते हैं हमेशा? क्योंकि आपका भी एज ए पीएचडी स्कॉलर एक कहा जाता है कि अगर एक अच्छा गाइड मिल जाए तो आप मतलब समझो कि एक तरह से भगवान की तरफ से आपका एक वरदान है। तो अगर आप मेरे गाइड के बारे में पूछें तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे गाइड हैं और बहुत सपोर्टिव हैं। और एक छोटी छोटी चीज़ें भी मतलब वो अगर मैं पूछने जाता हूँ रिलेटेड टू अपना पीएचडी वर्क, तो एक मतलब एक अच्छा रिस्पांस मिलता है उनके सामने से, और बहुत सपोर्टिव हैं। की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या डिफिकल्टीज आपको फेस करने को मिलता है? बेसिकली रिसर्च इज ऑल अबाउट, आप मतलब आप देखो तो एक डेटा का जरूरत है। इकोनॉमिक्स में प्राइमरी डेटा पे भी काम करते हैं, सेकेंडरी डेटा में भी काम करते हैं। तो सेकेंडरी डेटा तो कई ऐसे जो ओपन सोर्सेज हैं वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ओपन होता है, गवर्नमेंट के सोर्सेज या किसी और, वहाँ से हमें मिल जाता है। प्राइमरी डेटा में हमें एक टाइम चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए और मनी चाहिए, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है कि इंडिविजुअल लेवल पे तो उनके पास फंडिंग है कि नहीं है। दूसरा है, अगर सेकेंडरी सोर्सेज में भी अगर कुछ ऐसे सोर्स हैं जो हमारे पास, हमारे यूनिवर्सिटी के पास एक्सेस नहीं है, तो इन दैट केस अगर हमारे प्रॉब्लम होते हैं हमें, तो वहाँ पे भी एक चैलेंज होता है।
तो उसको जहाँ भी अपने फ्रेंड्स और कलीग्स या कोई भी प्रोफेसर्स के दोस्त हैं तो उससे अगर मिल जाता है तो हमारे लिए बेहतर होता है। और अभी एक मैं लेटेस्ट अपडेट करना चाहूँगा कि अभी हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ के पास कुछ ऐसे ई रिसोर्सेज हैं लाइब्रेरी के पास जो एक रिसर्चर्स को हेल्प करता है। और दूसरा भी इंडियन स्टैट जो 1 अप्रैल 2024 से मतलब हमारे यूनिवर्सिटी ने उसको सब्सक्राइब किया, सब्सक्रिप्शन लिया है। तो एक एज ए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, एज ए मास्टर्स स्टूडेंट भी इकोनॉमिक्स के, तो उनके लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि अगर कोई डेटा इंडिया स्टैट से लेना चाहे तो एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा वहाँ पे अवेलेबल है इंडियन स्टैट पे। टोटल नंबर ऑफ तो- पेपर आपका पब्लिकेशन कितने हैं वैसे? अभी मेरे पास 2 पब्लिकेशन हैं, दोनों ABDCC कैटेगरी और स्कोपस और वेब ऑफ साइंस में वो जर्नल है। और जर्नल का नाम है जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, जो इमराइल पब्लिकेशन हाउस के द्वारा पब्लिश किया आप जाता हॉस्टल है। में रहते हैं? हाँ, मैं हॉस्टल में रहता हूँ। हॉस्टल का फैसिलिटी क्या है, कैसा है मतलब कंपेयर टू अदर? हॉस्टल अच्छा है। जो हमारा जैसे पुराने वाले हॉस्टल्स जो हैं, मैं नए वाले हॉस्टल में रहता हूँ, रामानुजम हॉस्टल में। तो हॉस्टल तो अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा साफ सफाई के लिए स्वीपर्स को बोलना पड़ता है, जो मैं अक्सर हमेशा बोलता रहता हूँ, कंप्लेन करता रहता हूँ। तो ओवरऑल हॉस्टल की फैसिलिटी ठीक है, लेकिन बहुत सारा कंप्लेन करने के बाद चीज़ों को सुधारा जाता है। तो वो थोड़ा सा दिक्कत है, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है। लेकिन एज ए स्टूडेंट लेवल पे मैं कंटिन्यूअस ही एक ABVP का भी मैं कार्य करता हूँ, तो उसको लेके मैं कंटिन्यूअस साफ सफाई के ऊपर मैंने हमेशा मतलब कंप्लेन करता रहता हूँ, अटेंडेंट से, वार्डन से एक हमेशा कांटेक्ट में रहता हूँ। तो कोशिश रहती है कि मैं साफ सफाई कराऊँ जितना अपने लेवल पे होता है। तो लेकिन ओवरऑल हॉस्टल अच्छा है। जैसे भैया ने भी बताया कि इनका पेपर भी पब्लिश हुआ है और यहाँ तक कि दिल्ली भी गए थे, कॉन्फ्रेंसेस था। इसके अलावा क्या इनके पास मतलब गर्लफ्रेंड है या नहीं, इसके बारे में भी भैया ने बताया। इसके साथ में हॉस्टल्स के बारे में बताएं कि क्या वहाँ पे फैसिलिटी क्या है। हमेशा जैसे कहीं भी गंदी वगैरह रहती है तो वहाँ पे कंप्लेंट करने के बाद वो सॉल्व किया जा सकता है। सभी एस्पेक्ट को वो अच्छे से ध्यान से भैया ने बताया। चलते हैं दूसरे और भी लोगों से, भैया लोगों से बात करते हैं। मैं एक और भैया हैं जिनसे अभी बात करने वाला हूँ। आपका इंट्रोडक्शन? मेरा नाम अनिल राजपूत है और मैं बेसिकली हरियाणा से ही हूँ। डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, पंजाब बॉर्डर पर पड़ता है ये। आप किस कोर्स से यहाँ पे? मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से PhD स्कॉलर हूँ, सेकंड ईयर में। सेकेंड ईयर। तो आई थिंक आपका टॉपिक भी फाइनलाइज हो गया या फिर? टॉपिक पर काम चल रहा है उसके ऊपर, बट क्या? वो सून फाइनलाइज हो जाएगा। मैं एनर्जी सेक्टर में इंटरेस्टेड हूँ, तो उसके ऊपर ही काम कर रहा हूँ। सोलर एनर्जी, इट्स डेवलपमेंट एंड इंडियाज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट टूवर्ड द सस्टेनेबल फ्यूचर। आपका यूजी कहाँ से हुआ और पीजी कहाँ से हुआ? यूजी मेरा डिस्ट्रिक्ट कॉलेज से हुआ है और PG भी वहीं से हुआ है। पीजी भी वहीं से हुआ? हाँ, MMPG कॉलेज है फतेहाबाद में। तो आप सीवेज के बारे में आप कैसे जानते हैं? क्योंकि एक होता है जब आप यूजी लेवल या ग्रेजुएशन आप कहीं और से करते हो, MA। जब मैं मास्टर्स में था, अपने मतलब 3rd सेमेस्टर में था, तभी मुझे ऐसा लगा कि PhD के अंदर मुझे जाना है। तो यूट्यूब वगैरह पर देख रहे थे कि किस यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म निकले हैं कि नहीं निकले, तो वहीं से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का पता लगा। तो वहाँ से देख कर मैंने अप्लाई किया और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। एक ही यूनिवर्सिटी में मैंने अभी तक अप्लाई किया है, तो वो मास्टर्स में अप्लाई किया था। तो होपफुली यहाँ बैठे हैं, हो गया हमारा। और जब आप यहाँ फर्स्ट टाइम आए थे, सेंट्रल सिटी में आए थे, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि मेरी जो ग्रेजुएशन है और मास्टर्स है वो कॉलेज से थी, तो यूनिवर्सिटी का इतना ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन ओवरऑल मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे शांति ज़्यादा पसंद है, शहर की भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। तो उस लिहाज से यूनिवर्सिटी बहुत है, शहर से दूर है, ठीक है, बिल्कुल शांति का माहौल है। अगर आप काम करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट है। और लास्ट आपने बोला कि अभी सेकेंड ईयर आपका चल रहा है, तो लास्ट 2 ईयर आप हॉस्टल में रहे हैं। हाँ, मैं हॉस्टल में तो रहा। हॉस्टल का क्या एक्सपीरियंस रहा, अगर शेयर करें तो? मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरा, क्योंकि मैं पहली बार ही रहा हूँ घर से बाहर, तो मुझे हॉस्टल ही चाहिए था, क्योंकि बाहर मुझे नहीं लगता कि मैं सर्वाइव कर पाता इस माहौल में। हॉस्टल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ। अभी जो नए हॉस्टल बने हैं, क्योंकि पुरानों का मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन नए हॉस्टल बहुत अच्छे हैं, रूम बहुत नए हैं, वॉशरूम वगैरह सब बढ़िया हैं, और होपफुली मुझे अच्छे दोस्त भी मिले हैं, अच्छे जूनियर्स भी मिले हैं। वैसे रील एक होता है ना, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखते हैं जहाँ पे 2 बजे 3 बजे 4 बजे तो लोग जगे हुए होते हैं हॉस्टल लाइफ में। क्या ऐसा आप भी यहाँ करते हो? ऑब्वियस है, ये तो सभी करते हैं। मतलब वो अपने अपने उस हिसाब से कि क्लासेस वगैरह, जैसे हम स्कॉलर्स हैं तो हमको थोड़ी क्लासेस में लिबर्टी वगैरह होती है, तो लेकिन फिर भी 2-3 तो नॉर्मली बज ही जाते हैं पढ़ते करते भी, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि बच्चे रात में पढ़ते हैं और दिन में अपना उस हिसाब से देख लेते हैं। तो क्या रात में पार्टी चलता है, यानी कुछ भी पार्टी, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, चाहे किसी भी चीज़ का सेलिब्रेशन हो? हाँ, ऑब्वियस है वो चीज़ें। देखिए, क्योंकि हॉस्टल में क्या है कि हम ही हैं एक दूसरे के लिए,
ठीक है। अब हमारी फैमिली तो यहाँ पे है नहीं, तो छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं, दुख हैं, वो सब दोस्तों के साथ ही मनाए जाते हैं। तो पार्टी वगैरह हाँ ओकेजनली होती है, अगर पार्टी का माहौल है तो ओबियसली पार्टी होगी, क्या चाय भी बच जाते हैं। क्या गर्लफ्रेंड है आपका? फिलहाल तो नहीं है, अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो थोड़ा सा फ्यूचर पे ध्यान है, उसको बनाने में लगे हुए हैं। एक्चुअली आप एक पीएचडी स्कॉलर हैं, तो आपके लिए यहाँ पे एकेडमिक के लिए कितना फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है? मुझे अपने हिसाब से तो ठीक लगा, ठीक है। बाकी थोड़े बहुत इशू होते हैं कि हमारे पास जो है मतलब कि बड़े बड़े जर्नल्स के एक्सेस नहीं है, ये वो, बट यूनिवर्सिटी अभी स्टार्टिंग फेज में है, तो वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। लेकिन एक रिसर्च इन्वायरमेंट है, शांत इन्वायरमेंट है, आप पढ़ सकते हो अगर आप बैठ के पढ़ना चाहो तो। लास्ट चलते चलते जो यहाँ पे एडमिशन लेने वाले हैं इन 2024, आप उसके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके लिए यही मैसेज है कि अगर वो एक शांत इन्वायरमेंट चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, शहर की भीड़ भाड़ से दूर अगर वो अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, आप कर सकते हैं। लास्ट एक क्वेश्चन बस एक कंपेयर करना चाहेंगे कि डीयू और जो सेंट्रल स्टडीज उसमें क्या अंतर है, मतलब एक थोड़ा सा अगर हम देखें तो। देखिए DU एक ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है, तो कंपैरिजन मेरे हिसाब से बनता नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ, क्योंकि उसको बहुत साल हो चुके हैं, उसका एक बहुत बड़ा सर्कल है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अभी एक आप ऐसे कहते हैं न्यू बोर्न बेबी की तरह है, ठीक है। तो इनको अभी अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप 40-50 साल बाद आइए फिर देखेंगे, तो ये भी एक डेवलपिंग फेज में है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, तो इनका कोई कंपैरिजन मेरे हिसाब से है नहीं DU के साथ। अगर क्लास का कंपैरिजन करें तो क्लासेस, क्योंकि सुनते हैं कि डीयू में रेगुलर बेसिस पे क्लासेस नहीं होती, बट सीयूएच जो या फिर जितने भी सेंट्रल स्टडीज वहाँ पे रेगुलर क्लासेस होते हैं। देखिए जब भी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है, तो वो अपना जो है टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, वो अपना 100% देते हैं, ठीक है। नया नया मान लो मैं भी एक न्यूज़ स्कॉलर हूँ, तो मैं भी अपना 100% दूँ कि अच्छा काम करूँ, तो वैसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ भी हैं जो अपनी मेहनत कर रही हैं। उन DU हो गया, JNU हो गया, BHU होगा, उनको कंपटीशन, IIT को कंपटीशन देने के लिए, तो उस हिसाब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। जैसे कि अभी अनिल भैया से बात ही हो रही थी इस एस्पेक्ट को लेकर के, चाहे वह डीयू से बात करें, चाहे वह हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में बात करें, चाहे वह दोस्त के बारे में बात करें, चाहे वह एकेडमिक के बारे में बात करें, हर एक एस्पेक्ट को अच्छे से भैया ने बताया। चलिए और भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट की भी इंटरव्यूज आने वाले हैं, तब तक बने रहिए। थैंक यू।